السلام علیکم میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم اس شخص کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام حسن اللیاری ہے، اور کیسے اس کے گندے عقیدے اسلام کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے جو نوجوانوں کو راہ دین سے الگ کر رہا ہے، صحیح راہ سے الگ کر رہا ہے۔ جو بھی ہمارے نوجوان ہیں جن کے پاس علم کم ہے، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ نوجوان لڑکے ہوں، مرد ہو، عورت ہو، یا جو بھی ہو۔ بیوقوف کون ہے؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ یہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ بخاری میں اور بھی بہت سارے کتب میں۔ یہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی، لا يعقلون، عقل نہیں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو ظالم خلیفے آئیں گے جو میری سنت پہ نہیں ہے، میری ہدایت پہ نہیں ہے، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ صفی ہیں، صفی ہیں، صفی ہیں۔ سيقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها۔ یہ صفی ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کو، ہمیں پتہ چلا کہ صفی کون ہے، صحابہ میں صفی کون ہے، اور صحابہ میں سے جو صفی ہیں ان کو جس کو حکومت ملی وہ کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جو خلفاء جو ہدایت پہ نہیں، جو سنت پہ نہیں، جن کی عمارت صفحاء کی عمارت ہے، جو انسان کی صورت میں، وہ شیطان انسان کی صورت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میں گالی نہیں دے رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ خلفاء کون ہیں وہ میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا۔ جواب دے دو بھائی۔ اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے نا، یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بات صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ علم کسی کام کا نہیں کیونکہ اس کے عقیدے خراب ہو گئے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، پر اس کے عقیدے بھی، یعنی وہ بھی جو لعنتی ہو گیا۔ سب سے پہلے ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جو حسن اللیاری ہے، اس کا ایک ٹی وی چینل ہے جس کا نام ہے اہل بیت ٹی وی، اور یہ ایک شیعہ، یعنی کہ یہ ایک شیعہ ہے۔ اس کا جو فرقہ ہے وہ شیعہ ہے، اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ شیعہ ایکچولی ہے بھی یا نہیں، لیکن اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، میں اس پر بالکل ہی بھروسہ نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے یہ کسی کا ایجنٹ ہو جو اسلامی لباس پہن کے ظاہر ہوا ہو اور فتنہ پھیلا رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اہل بیت ٹی وی نام کا چینل چلاتا ہے جو کہ یونائٹڈ بیسڈ ہے، یعنی کہ یونائٹڈ کنگڈم انگلینڈ، اور یہ ٹی وی چینل بلونگ کرتی ہے حسن اللیاری، حسن اللیاری سے بلونگ کرتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے سارے ویڈیوز اور جو بھی تقریر ہیں اس ٹی وی چینل پہ چلاتے ہیں، تو وہاں کے لوگ دیکھتے بھی ہیں۔ اس سے پہلے مطلب شروعات میں یہ ٹی وی چینل ایران میں بھی آپریٹ ہو رہا تھا، پر ایران کے کلیریکل کورٹ نے اس حسن اللیاری کو کافر قرار دے دیا گیا۔ دیٹ مینس اس کو کافر کہا کہ وہاں سے بھگا دیا گیا، دھتکارا گیا۔ اب یہاں سے تو ویکیپیڈیا سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کافر ہے۔ اب مجھے صرف قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ اس کے سارے طریقے غلط ہیں، تو یہ اپنے آپ ثابت ہو جائے گا کہ یہ کافر ہے۔ اب ہم آئیں گے اس کے دوبارہ تصویر کی طرف، اور آپ اس کو پہچانتے ہوں گے۔ دیکھیے کئی سارے اس کے تصویر ہیں، ٹھیک ہے، اور کئی سارے اس کے ویڈیوز ہیں جو میں دکھا سکتا تھا پر میں نے دکھایا نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کاپی رائٹ کلیم ہو جائے۔ تو بس آپ اس کی تصویر کو جانیں، اور مجھے مین جو چیزیں دکھانی ہے وہ ہے قرآن کی دلیل۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بات بتا دوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانا شروع کیا تو مکے والوں نے ان پہ کئی سارے ظلم ڈھائے اور صحابہ کرام پہ ظلم ڈھائے، تو ان کو مجبوراً ہجرت کرنا پڑ گیا مکہ سے مدینہ۔ تو اس وقت ہمارا ہجری کیلنڈر سٹارٹ ہوا ہے۔ تو بات کریں اسلام کی جو پہلی جنگ ہے وہ جنگ بدر، یاد کرنا، جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے جو آلموسٹ 17 رمضان 2 ہجری، یہ جنگ 2 ہجری کو ہوئی تھی، جس جنگ میں 313 صحابہ کرام موجود تھے، کم اور بیش جو بھی ہو، بہتر مورخ جانتے ہیں، اور ہمارے پاس تو یہی ہے ریکارڈ کہ 313 صحابہ کرام شروع سے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جنگ بدر میں موجود تھے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، ان 313 صحابہ میں وہ کون سے صحابہ تھے؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے، یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے اس میں، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے، یا طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے، یا بلال رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے؟ 313 صحابہ تھے۔ دیٹ مینس ہم تو چند صحابہ کے نام جانتے ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے جنگ بدر کے دوران، اور یہ بہت ہی نازک سچویشن تھا، نازک استھتی تھا، جس وقت اللہ کے رسول نے خود دعا فرمائی، یا اللہ ہمیں غیب سے مدد عطا فرما، اگر یہ جنگ ہم ہار گئے تو کل قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دیٹ مینس کہ اس وقت کافر
मदीने की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब जंग करने की नीयत से बढ़ रहे थे, और बाकायदा बदर के कुएं के पास जंग हुआ और मुसलमानों की जीत हुई थी, अल्लाह की गैब से मदद आई थी। तो ये जो मसला है 2 हिजरी का है, यानी कि फतह मक्का से पहले, जंग बदर फतह मक्का से पहले हुआ था, यानी मक्का को जो फतह किया गया था उससे बहुत साल पहले जंग बदर हो चुका था। तो जंग बदर में 313 सहाबाए कराम थे। अब आए आप कुरान पे, ये पाके कलाम है, फुरकान है। अल्लाह ने इस किताब की हिफाजत की दलील इस किताब में दी है कि मैं इस कुरान की हिफाजत खुद करूंगा, मतलब इस कुरान का हिफाजत करना का जिम्मा अल्लाह के पास है। ठीक है, अल्लाह ने खुद इस कुरान को हिफाजत किया है। हसन अल-लयारी के नजदीक ये भी साबित है कि माज़अल्लाह हमारे पास जो कुरान पहुंचा है वो इनकम्प्लीट है, मतलब हेर बदल इधर उधर किया गया है। अब इसके जो गंदे अकायद हैं वो हर कदम पे इसके अकायद गलत हैं, यानी कि पूरी दुनिया गलत है और ये बंदा सही है। खैर ठीक है, मैं सहाबाए कराम के बारे में बात करता हूं। ये है सूरह अल हदीद, यहां आप देख रहे हो मेरा जो कर्सर है यहां पर, सूरह अल हदीद है ना। ये 57 नंबर सूरह है, कुरान की 57 नंबर सूरह है। आप इसको खोल के 10 नंबर आयत पे चले आओ। ठीक है, ये 11 है, ऊपर 10 है ये वाला, और ये 10 नंबर आयत का तर्जुमा है इंग्लिश में, मेरे पास हिंदी में भी मौजूद है। तो आप जब तर्जुमा पढ़ना शुरू करोगे तो आप यहां गौर करना, यहां कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, एंड वाई शुड यू नॉट स्पेंड इन द कॉज ऑफ अल्लाह। ये एक इंग्लिश में है, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं और आप सुनना, मेरे पास हिंदी में मौजूद है। और तुम्हें क्या है कि अल्लाह की राह में खर्च ना करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, उस वक्त जो भी सहाबाए मौजूद थे और जो भी लोग मौजूद थे उनसे अल्लाह फरमा रहा है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च क्यों ना करो, हालांकि आसमानों और जमीन में सब का वारिस अल्लाह ही है। ठीक है, अल्लाह इज द सोल इनहेरिटर ऑफ द हेवेंस एंड द अर्थ। आसमान और जमीन का मालिक अल्लाह ही है, तुम में बराबर नहीं। ठीक है, दोज ऑफ यू हु डोनेट एंड फॉट, तुम में बराबर नहीं वो जिन्होंने फतेह मक्का से कब्ल, यानी कि आप यहां देख रहे हो, बिफोर द विक्ट्री ओवर मक्का। ये जो पॉइंट है बहुत जरूरी है। ये सहाबाए कराम का एक ग्रुप है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम में बराबर नहीं है। कौन बराबर नहीं है? जिन्होंने फतेह मक्का के वक्त, यानी जो फतेह मक्का के सहाबा थे वो अलग थे, और फतेह मक्का से जो पहले के सहाबा थे वो अलग थे। मतलब मक्का फतह होने से पहले के जो सहाबा हैं उनके बारे में बात अल्लाह फरमा रहा है कि तुम में बराबर नहीं वो जिन्होंने फतेह मक्का से कब्ल, यानी कि पहले, फतेह मक्का से पहले खर्च और जिहाद किया। डेट मीन्स 2 ग्रुप है सहाबाए कराम का, और अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं ग्रुप ए से ग्रुप बी को, ग्रुप ए वाले सहाबा फतेह मक्का से पहले वाले सहाबा हैं, यानी कि जंग बद्र के सहाबा, और फरमा रहे हैं कि ए सहाबियों, ये सहाबा तुम्हारे बराबर नहीं है। मैं इसको और वजाहत कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। मतलब यहां पे डिफरेंस बताया जा रहा है कि जो सहाबाए कराम जंग बद्र में थे वो फतेह मक्का के बाद वाले सहाबा के बराबर नहीं है, उनका मर्तबा बड़ा है। यहां देखिए, आर अनपैरेलल, मतलब बराबर नहीं है, पैरेलल नहीं है, दे आर फार ग्रेटर इन रैंक। देखिए यहां रैंक की बात की जा रही है, यानी कि इन सहाबाए कराम के जो दर्जात हैं, जो इनका रैंक है बहुत बड़ा है। यह कुरान फरमा रहा है उन सहाबाए कराम के बारे में जिन्होंने जंग बदर में पार्टिसिपेट किया। जो इस्लाम का बहुत ही नाजुक सिचुएशन था, इस्लाम को उस वक्त सख्त जरूरत थी इन लोगों की, जो अल्लाह ने अपनी दीन की खिदमत इन लोगों से ली। ये वो सहाबाए कराम की बात की जा रही है कि ये बराबर नहीं है, इनका रैंक बहुत बड़ा है। समझे इस बात को? वो मर्तबे में उनसे बड़े हैं जिन्होंने फतेह मक्का के बाद खर्च और जिहाद किया। इनका जो हाई रैंक मिल गया कि ये बड़े हैं। अल्लाह जन्नत का वादा फरमा चुका और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड। यहां देखिए भाई आप, अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड ईच, प्रत्येक से,
एंड फाइन रिवॉर्ड। जब अल्लाह ने ऑलरेडी वादा फरमा चुका है रिवार्ड के लिए, जन्नत का वादा कर चुका है उनसे, तो इसमें अब दुनिया किस चीज पे लड़ रही है समझ में नहीं आ रहा है। जब सहाबाए कराम ऑलरेडी अल्लाह ने कहा कि मैं इनसे राजी हूं, मैं इनसे राजी हो गया, और एक तरफ शिया कह रहे हैं कि सहाबाए कराम ने हक मार दिया। अरे भाई, जब हक मार दिया तो अल्लाह राजी कैसे होगा भाई? भाई उस बंदे से अल्लाह राजी कैसे हो सकता है जो कुरान में हेर फेर कर दे? उस बंदे से राजी कैसे हो सकता है जो मौला अली शेर खुदा पे हमला करे? उस बंदे से अल्लाह राजी कैसे हो सकता है जो बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर को जलाए? उस बंदे से अल्लाह राजी कैसे हो सकता है जो सैयदा पाक का हक मारे? क्या अल्लाह को नहीं पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद ये सब मामलात होंगे या ये सब सारे सिचुएशन होंगे? बेशक अल्लाह अल्मुल गैब है, और अल्लाह की अता से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बात पता था कि मेरे जाने के बाद किस तरह से फितने वजूद में आएंगे। तो ये वो मुनाफिक लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के दीन में झूठी दलीलें पेश कर कर अवाम को गुमराह किया है। उनमें से सबसे बड़ा जो मुनाफिक आपके सामने ये जाहिर हो रहा है, जिसका नाम हसन अल्लाह यारी है। मैंने कुरान से साबित कर दिया है कि जंग बद्र के जितने सहाबा हैं अल्लाह उनसे राजी है, उनको जन्नत की बशारत दी गई है, और उनका मर्तबा दूसरे सहाबा कराम से भी बड़ा है। मैं ताबई तो और तबे ताबई बहुत दूर चले गए। सहाबा कराम में भी गिरोह जो बड़े बड़े बने थे, खुलफाए राशिदीन हैं, असरे मुबशरा के सहाबा हैं, और जंग बद्र के सहाबा 313 हैं। ये वो सहाबा कराम है जिनसे जन्नत की बशारत कुरान से साबित हो गया कि इनसे अल्लाह राजी है और इनको रिवार्ड्स का वादा दे दिया गया है, यानी कि वो जन्नत का वादा दे दिया गया है। अब मुझे बताएं कि ये बदबख्त सही बोल रहा है या मेरा पाके कलाम सही बोल रहा है? अब जितने भी हमारे भाई बहन जिनके पास इल्म की कमी है वो इल्म दीन सीखें, कुरान पढ़ें, ऐसे लोगों के चक्कर में ना रहें, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फितनों के बारे में हमें आगाह कर दिए हैं कि हमारे उम्मत में 73 फिरके होंगे, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक फिरका होगा वो जन्नती होगा। ठीक है, तो आप अपने पर एहसान करें, और जितने भी हमारे शिया भाई हैं जिनको अभी भी लगता है कि अगर वो अपनी इस्लाह चाहते हैं या अपनी इस्लाह करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के समझें। आप ये ना सोच लें अल्लाह के वास्ते कि माज़ अल्लाह सैयदा पाक का हक किसी और ने मारा या उनको नहीं मिला। नहीं, अल्लाह ने इन लोगों से राजी का मेंशन कुरान में दे दिया, और इससे बड़ी कोई दलील हो नहीं सकती है। तो दुआ में याद रखिएगा। आप अपने सवाल को मेरे कमेंट्स में डाल सकते हैं, अगर और भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।